Sir, good. Have your seat. Thank you, sir. This is Shravan from Apanda. Yes, sir. Would you please introduce yourself to the board member? Sir, I have done BTech from Mechanical and Automation Engineering from Maharaja Agri Institute of Technology, that is under Guru Gobind Singh International University in Delhi. And my hobbies are playing cricket, basketball, and swimming. Sir. Okay. So you have sociology or your optional. Yes, sir. Can you tell me some of the sociologists from India? Sri M.N. Srinivasan Okay. and Sri G.S. Ghure. Sorry, sir. That's I can't recall. Okay. Tell me the contribution of M.N. Srinivasan in the field of sociology. Sir, M.N. Srinivasan has given theories like Sanskritization, Westernization, where he tried to solve the problem of social change or social mobilization, Okay. where he said that lower caste group or lower group, he tries to take up all the culture or what do you say, sir, tarika, lifestyle, and adopting the lifestyles of the higher class, they mobilize themselves towards higher caste. So this was the theory given by M.N. Srinivasan. M.N. Srinivasan. So what's the difference between Sanskritization and Westernization? Yes, sir. Sanskritization is basically following up the culture of higher class or higher caste in India, where Westernization is following the Western culture. That is basically the European culture or American culture. Can you give me an example of Sanskritization? So Lingayats and the Jats of Haryana. Okay. So what traits they adopt from the higher caste in order to move themselves into that category? Yes, sir. So as a case study of M.N. Srinivasan, we can say the Lingayats actually took up the Brahminic culture, Okay. and they took up wearing sacred thread, taking early bath, following vegetarianism. So these were few traits that cultures that they adopted and moved themselves up. And what the contribution of G.S. Ghure? Sir, he has given theory of he has studied tribes and given theory that tribes are nothing but backward Hindus. Okay. Tribes are nothing but backward Hindus. Yes, sir. And what are the regions or the points raised by him to prove that point that tribes are nothing but backward Hindus? So according to him, actually what he said the tribes living in jungles come to the plain areas and they intermingle with the plain area people and taking up the jobs upper than those of the lower caste or the Shudras. So they're looking to their cultures, plain areas cultures, they follow up the same and tries to worship same type of deities and all. And following the same kind of deities, we can say them as backward Hindus. Tell me three things that we should learn from tribes. Tribes. So they are stick to their cultures. They are very much attached with the nature, and their god or deities are all either natural things like some tree or animals. So these are few things that we should imbibe in us in today's modern world. You have just told two things: their culture, their strictness to their culture, and their reverence to the nature. Yes, sir. Following of the. And what is third? Yes, sir. You are a student of sociology. Yes, sir. As a sociologist, what you have learned from the tribes? Yes, as a sociologist, sir, their strictness towards the nature. I believe in today's world of changing climate, this is very much required to take up the issues of the nature and preserve it. So I have learned very much and I try to do so. One was that, and preserving or not actually stucking in the desire or much desire.
So one of take up only that much from nature what is required to you. So one another trait. My last question, what do you mean by voting behavior? And tell me 3 factors that influence voting behavior of Bihari people. Yes. So voting behavior is the basically attitude or thinking that influences someone to vote for some party or someone. So the reason may be caste, that is very much into the Bihari system. Then religion is also there. Unemployment is another reason that can attract or that had attracted actually. So development, showing development procedures would be that can change actually voting behavior. So you want to say that caste and religion still plays a major role in voting behavior of Bihari people. Yes, sir. श्रवण, Yes, sir. ओके, आप अभी ट्राइब्स की बात कर रहे थे, राइट? Yes, sir. तो मुझे ट्राइब्स के कुछ प्रॉब्लम्स को बताइए कि ट्राइबल पीपल को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सर आज के टाइम पे डिफॉरेस्टेशन जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू लूज देयर लाइवलीहुड। दूसरी चीज़ सर उनके पास डेवलपमेंट पहुंच नहीं पाती है या पहुंची नहीं है कह सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। ये सब प्रॉब्लम सर ट्राइबल एरियाज़ में हमने देखे हैं जो फेस करते हैं सर। कुछ और प्रॉब्लम्स बताइए, क्योंकि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और ट्राइबल्स को तो आपको बहुत डीपली पढ़ना होगा, तो कुछ और बहुत मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे बताइए। सर सोशल प्रॉब्लम्स भी होती हैं सर। एक तो कल्चरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक सरकार का इंटेलिजेंस उनके रिलीजन फॉलोइंग आइडियाज़ में सर, और वे ऑफ देयर बिलीफ उसमें इंटेलिजेंस एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम ये हो सकता है सर। ठीक है, अच्छा, आप इंडिया के ट्राइब्स और वर्ल्ड के ट्राइब्स में कुछ चेंजेस बता सकते, कुछ डिफरेंसेस बता सकते हैं? यस सर, आज के सिनेरियो में अगर हम देखें सर, ट्राइब्स बेसिकली अब अपने आप को डेवलप करना चाह रही हैं और वो दे आर कमिंग आउट फ्रॉम दी जंगल्स, और जिस कारण से सर हम उनके अंदर भी ये देख रहे हैं कि उन्हें भी डेवलपमेंट प्रोसीजर्स चाहिए। एक और वर्ल्ड में हमने देखा है सर यहाँ से ज़्यादा ही डेवलप हो चुके हैं लिविंग एरियाज दैट इज़ इन अफ्रीका, और दैट हैज़ एक्चुअली बीन अबैंडन्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ, सो लिविंग दोज एरियाज। ओके, और कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिफरेंसेस मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया के ट्राइबल पीपल में और वर्ल्ड के ट्राइबल पीपल में क्या क्या किस किस लेवल्स पे डिफरेंसेस हैं? इट कैन बी ज्योग्राफिकल। यस सर, around the world they are losing the land, that is one, and but still there are much in India, so this may be one difference. Okay. At political level we can say there are much indulgence in of politics in other tribes, but according to the government's policy of not interfering and making scheduled areas, so they are still left on their own fate, a kind of. ठीक है, कुछ ट्राइब्स के बारे में बताएं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के नेटिव ट्राइब्स हैं, इनके बारे में बताएं। Sir, Mundas, Santals. So these are. ओके, प्रिमिटिव ट्राइब्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा इनके बारे में, प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में? Sorry, I cannot recall right now. कोई ओके, आपके हॉबी के ऊपर आते हैं ना। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल, स्विमिंग करते हैं, आपकी तो हॉबीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गेम्स से। अच्छा, क्रिकेट के अंदर, अच्छा बताइए, आप क्रिकेट से क्या लर्न करते हैं, क्या सीखते हैं? क्रिकेट आपको किस प्रकार से आपके एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार हेल्प करेगा? सर क्रिकेट ने मुझे हमेशा एक टीम स्पिरिट सिखाई है और नेवर लूजिंग एटीट्यूड सिखाया है, और भी सर सबको साथ लेकर चलना, एक ये भी मुझे एक सिखाया है।
और पेशेंस लूज नहीं करना, पेशेंस। ये एक एटीट्यूड मेरे अंदर इन्वाइव किया। ओके, कुछ इंसिडेंट बता सकते हैं आप क्रिकेट के अंदर जो इंडिया के लेवल पे हुआ हो, जहाँ पे आप ये पेशेंस लूज करना नहीं सीखते हो? जी सर, एक जो मुझे अभी याद आ रहा है सर, इंडिया और श्रीलंका का मैच था, निदास ट्रॉफी। ओके। जब अगर मैं ठीक हूँ सर 28 रनों की जरूरत थी और कार्तिक थे, दिनेश कार्तिक थे, उन्होंने मार के उनको रन स्कोर कर दिया था आखिरी ओवर में सर। ओके, वेरी गुड। आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से हुआ? सर मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। ऑटोमेशन इंजीनियरिंग क्या होता है? सर ऑटोमेशन इंजीनियरिंग यहाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रेफर्ड है मेरे कोर्सेज के हिसाब से। सर इट इज़ बेसिकली स्टडिंग अबाउट दी automobiles and the recent developments or what other features can we add into, so these are। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स जो हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं जर्मनी में, इसके पीछे का रीज़न क्या है? So availability of materials, their educational institutions have been far better and they have started from early, that is one reason। और सर दूसरा तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ही है सर, वहाँ जैसे स्टील का पाया जाना, रबर के इंडस्ट्रीज़ का होना आसपास इजली है। तीसरा सर बहुत अच्छा रोड नेटवर्क है पूरे यूरोप में, जो उसको कहीं भी ले जाने के लिए फेवर करता है सर। इसके बाद उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं जो इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को फेवर करती हैं। रोड नेटवर्क आपने बोला? यस सर, कंफर्म है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है। अगर रोड नेटवर्क ज़्यादा अच्छा होगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगी, इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे वाटर वेज काफ़ी डेवलप है, राइट, है ना। वहाँ पे राइन, ड्रोन, कई सारे रिवर्स हैं जो कि आप कनेक्टिविटी बोल सकते हैं। Yes. कनेक्टिविटी। Thank you, sir. श्रवण, यस सर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में मुझे बताइए, कैसे स्टार्ट हुआ और राइट नाउ हम लोग कौन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जी रहे हैं? सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में। लेट 18th सेंचुरी? यस सर, ओके। इन इंग्लैंड। और सर वहाँ पे बेसिकली ड्यू टू दी इन्वेंशंस ऑफ मशीन्स, हैवी मशीनरीज एंड इन सब के कारण सर इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन बढ़ गए थे, जिस कारण इंडस्ट्रीज लगाना आसान हो गया था, जिस कारण एग्लोमरेशंस होने लगे, लोगों का एक जगह जमाव बसना शुरू हो गए। यही एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। ठीक है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हम लोग स्टेजेस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन, लाइक दैट। तो ये क्या चीज़ है सर? बेसिकली ये एक स्टेज है जहाँ पे हमने किस टाइप की टेक्नोलॉजीज को इम्बाइव किया है। जैसे सर आज के टाइम पे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह सकते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, जो टोटली हर मशीन को आर्टिफिशियली रन करने पे छोड़ दिया जाता है। देयर इज लेस रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड देयर। थर्ड क्या था सर? आप अभी हम लोग फोर्थ में चल रहे हैं, सर दैट इज मेंट अबाउट एआई एंड ऑटोमेशन। थर्ड क्या था? सर मुझे याद नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं है। तो अब मुझे बताइए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के 2-3 पॉजिटिव्स एंड 2-3 नेगेटिव्स। जी सर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन बहुत इजी कर दिया, प्रोडक्ट्स मेकिंग। इससे सर जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन थी उनकी डिमांड्स को पूरा किया जा सकता था, और इसने सर बहुत हद तक जॉब प्रोवाइड की बहुत लोगों को अलग अलग प्रकार से। सर नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि मैकेनाइजेशन हुआ तो इससे जॉब लॉसेस भी हुए, ये भी एक हुआ सर। दूसरा कि ये एग्लोमरेशंस बनने लगे, एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ों का बसना हो गया, जिसे हम अर्बनाइजेशन भी कह सकते हैं सर, हैवी अर्बनाइजेशन हो गया। और तीसरा होगा सर, हम मशीनों पे ज़्यादा डिपेंड होने लग गए हैं, एक ये भी है सर, जो ह्यूमन स्किल्स को कम कर रहा है सर, ये कह सकते हैं। ठीक, एआई क्या है? सर इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली यूज ऑफ मशीन्स
on their own intelligence, letting machine to do their own intelligence by some programming and other things. Example may be robot robots. that actually works on the command of predetermined commands of human itself. ओके, और एआई से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है स्टीफन हॉकिंस का, आपको स्टेटमेंट के बारे में पता है? Sorry sir. AI has the potential to eliminate human race. ये स्टेटमेंट है स्टीफन हॉकिंस का, जी sir. आप एग्री करते हैं इससे? ऐसा हो सकता है कभी? सर यदि प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं सच हो भी सकता है सर, पर यदि मैं कहूँ तो अपने नॉलेज पे, अपने अंडरस्टैंडिंग में मुझे बताइए क्या इज इट पॉसिबल? सर एट सम पॉइंट इट is possible, but without intelligence of human it is not even possible. As we can say computer intelligent enough to solve any problem, but not it is more intelligent than human that has actually created. तो सर ये खत्म नहीं, जैसे कि सर पूरी ह्यूमन रेस को खत्म तो नहीं कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर एक इम्पैक्ट जरूर ला सकती है. जैसे सर जॉब लॉसेस हो सकते हैं, जैसे कई और प्रॉब्लम्स लाइक ये ई वेस्ट जनरेशन हो सकते हैं जो इन्वायरमेंट को डिजास्टर्स हो सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर ह्यूमन इसका भी हम निकाल सकते हैं. तो सर जैसे कि हमने अभी अगर मशीनीकरण से इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमने अगर कार्बन उत्सर्जन तेज किया है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने फिर अभी आर्टिफिशियल ट्रीज़ का भी बनाने लग गए हैं जो सर कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, सिक्वेस्ट करता है. अदर वन इस सोलर प्लांट्स भी हम लगाने लग गए हैं जो जिससे एक तरह से पॉल्यूशन कम होता है. विंड मिल्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं. तो ये सब कुछ तरीके हैं सर जो ह्यूमन किसी एक प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए दूसरी खोज लेते हैं. तो मेरे हिसाब से सर खत्म नहीं हो सकते. न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इंडिया में अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज हो रहे हैं वो किस तरह के रिएक्टर्स? सर फिजन पे बेस्ड रिएक्टर्स हैं ये. क्या बोलते हैं उस रिएक्टर का नाम क्या है जो अभी इन प्रैक्टिस है? सॉरी सर. और फिजन पे बेस्ड है, ठीक है. और एक और रिएक्टर होता है एक्चुअली फिजन पे बेस्ड है, बट रिएक्टर्स के दो नाम होते हैं. दो अलग अलग तरह के रिएक्टर्स अभी हम लोग यूज कर रहे हैं. आपको आइडिया नहीं है उसके बारे में? मैं देख रहा हूँ आपकी हॉबी में स्पोर्टिंग इवेंट्स काफ़ी हैं, ठीक है. तो कुछ मुझे ओलंपिक्स के बारे में बता दीजिए. इंडिया का क्या अभी तक ओलंपिक रिकॉर्ड रहा है थ्रू आउट ऑल ओलंपिक्स? मेजर अचीवमेंट्स क्या है? सर पहली बार तो ओलंपिक्स के इंडिया से जो गए थे वो नॉर्मन पिट्सकार्ट थे जो कि वेस्ट बंगाल से थे, पर क्योंकि वो इंग्लैंड ओरिजिन थे तो उनको हम काउंट नहीं किया जाता है. जो कि 1912 में उन्होंने मेडल 2 सिल्वर मेडल जीता था एथलेटिक्स में. उसके बाद सर 1952 में श्री के डी जादव थे जो जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था वेट लिफ्टिंग में. उसके बाद सर आगे जाकर के हमने हॉकी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सर. 1928, 1932, 1936, फिर 1948, 1952, 1956 और इनमें लगातार हमने गोल्ड लाया सर. अभी तक टोटल कितने हॉकी में गोल्ड लाए हैं? सर 8 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज एंड 1 सिल्वर सर. टोटल 11 मेडल्स. 8 ब्रॉन्ज में कंटिन्यूअस कितने आए हैं सर? कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल 8 गोल्ड्स में हॉकी में वो कितने? टोटल 6 गोल्ड मेडल्स हैं सर. यदि वर्ल्ड वॉर को अगर हम बीच में हटा देते हैं जो नहीं हुए थे तो इस से 6 लगातार आए थे सर. ओके, मुझे बताइए ओलंपिक्स कब कब नहीं हुए हैं? सर वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, एक तो 1940 में, एक 1944 में, ये 2 टाइम पे नहीं हुए थे. एक सर 1914 इफ आई एम करेक्ट सर 16 जब वर्ल्ड वॉर 1 था तब भी नहीं हुए थे सर. ये 3 बार ऐसा आप कहना चाह रहे हैं कि ओलंपिक्स कैंसिल हुए? यस. ऐसा कभी हुआ है कि ओलंपिक्स पोस्टपोन हुए हैं? जी सर. इस बार का जो ओलंपिक्स है सर 2020 में होने वाला था इस टोक्यो में, जो कि 2021 में कराया जा रहा है सर. इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ है? सर पोस्टपोनमेंट कभी हुई है? मुझे याद नहीं सर. अच्छा ठीक है. और भी इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में बताइए आप.
सर उसके बाद 1996 में लिएंडर पेस सिल्वर मेडल जीते थे टेनिस में। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में 2000 में जीती सिडनी ओलंपिक्स में। उसके बाद सर राजवर्धन सिंह राठौर थे हमारे से, राजवर्धन सिंह राठौर जिन्होंने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था 2004 में। उसके किस इवेंट में जीता था? शूटिंग में सर। शूटिंग में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ये मुझे याद नहीं। बहुत बड़ा डायमेंशन है शूटिंग। आपको याद है राजवर्धन सिंह राठौर ने किस इवेंट में जीता था? सॉरी सर ये कोई बात नहीं, ठीक। सर उसके बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा थे, उन्होंने गोल्ड मेडल लाया था शूटिंग में ही। उसके बाद सर 2012 हमारे अब तक के हिस्ट्री का सबसे बेस्ट ओलंपिक माना जाता है क्योंकि हमने 6 मेडल उसमें जीते थे। सर इसमें गोल्ड तो कोई नहीं आया था, पर सानिया नेहवाल ब्रॉन्ज मेडल टेनिस में लेके आई थी। MC मैरी कॉम है वो बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। और ये सर विजय सुशील कुमार जिन्होंने सिल्वर मेडल लाया था अपने वेट लिफ्टिंग में। और सर 2016 में फिर सुशील कुमार सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में, यस ऐसा आप बोल रहे हैं? इफ आई एम करेक्ट सर। ठीक है, आप उसको फिर से रिपीट दैट। सर 2016 में फिर रियो ओलंपिक्स में हमने 2 मेडल जीते थे, जिसमें PV सिंधु सिल्वर मेडल अपने बैडमिंटन में लाई थी और फिर सर साक्षी मलिक थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में लाया था। 16 में एक एथलीट थी जिन्होंने मेडल तो नहीं जीता बट बहुत ही मार्जिनली मेडल मिस किया था, और डिस्पाइट दैट उन्होंने बहुत ही, और इसके लिए उन्हें खेल रत्न भी मिला था। सर मिस दीपा कर्माकर जो थी उन्होंने मेडल नहीं लाया था, 4th पोजीशन पे रही थी, पर एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस जिम्नास्ट में था सर। ओके सर, Okay, Shravan, your interview is over, थैंक यू। and we will give you feedback right now. शुरू में हम लोग देखे थे आपका हाथ का मूवमेंट ज़्यादा होता है, बाद में आपने रिस्ट्रिक्ट किया था। शुरू में बहुत ज़्यादा था, तो उसको आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो। और शुरू में आई मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा था, बहुत इधर उधर देख रहे थे, बट लेटर हाफ ऑफ द इंटरव्यू आपने उसको रिस्ट्रिक्ट किया, तो उसको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। जी सर। बाकी सिटिंग पोजीशन तो ठीक है इनका, सिटिंग पोजीशन में कोई दिक्कत थोड़ा सा नहीं और पैरेलल हो सकता है। ठीक है। और एक चीज़ जो शायद पिछली बार भी हम लोगों ने बताया था, स्माइलिंग फेस सिटिंग, लेकिन समटाइम्स आप रॉन्ग इंसिडेंट्स पे स्माइल करते हो। जैसे अगर कोई चीज़ नहीं आता है तो यू स्माइल, तो वहाँ पे थोड़ा सा और लगेगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है हमें कि नहीं आता है तो करना है। और सेकेंडली उसके साथ ये भी करना है कि सर currently I am not able to recall, but I will look upon it. I will look into it. इस तरह करोगे थोड़ा सा कि बाद में मैं उसको देख लूँगा, थोड़ा सा लगे कि लर्निंग एटीट्यूड जो है इसमें है। दूसरी एक लास्ट उस तरह का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का था, उसमें आपने बताया कि जॉब आया भी जॉब गया भी। ठीक है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा सा हो जाता है काउंटर कर। अब उसको इस तरह से रखते हैं कि इट क्रिएट्स न्यू टाइप ऑफ जॉब और ट्रेडिशनल जॉब चले गए। ठीक है, तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आया भी गया भी, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो आप कर सकते हो कि न्यू, जैसे मैनेजरियल जॉब्स हुआ, टेक्निकल जॉब्स हुए, वो आए और ट्रेडिशनल जॉब्स का चले गए। तो इस तरह का होगा थोड़ा सा क्वालिटेटिव। थैंक यू सर। आपको कैसा लगा आपका इंटरव्यू? सर पिछली बार से तो बेटर लगा सर। पिछले बार से बेटर हुआ है आपका, अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात है कि यू हैव ए स्माइलिंग फेस, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और वही जो सर ने बोला कि कई एक और इंसिडेंट्स में ऐसा हुआ कि आप रॉन्ग जगह पे स्माइल कर गए, अदरवाइज मेरे तरफ से सब कुछ ओके है ना। एंड 2-3 फैक्ट्स थे जो कि आपने गलत बताया, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बट ट्राइबल्स में नहीं गलत आप कर सकते, बिकॉज कि आपका जो बैकग्राउंड है, आप जो आते हैं वो भी झारखंड से आते हैं ना शायद, एंड आपका सोशोलॉजी है, तो आप ट्राइबल्स वाले क्वेश्चंस में आप देख लीजिएगा पीवीटी क्या होते हैं, ये सारे कुछ देख लीजिएगा। अभी रिसेंट में ओडिशा में किसी ट्राइब्स को दिया गया, ठीक है, ये सारा चीज़ थोड़ा देख लीजिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स, ठीक है ना। तो वही पीवीटी इंजन को बोला जाता है, तो उस तरह वो इस तरीके की जो भी करंट के इशूज होंगे ना, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड एक बार सर के क्वेश्चन में ये था कि आपने 2 जगह पे बोला, एक साइना नेहवाल को आपने बोला टेनिस में, सॉरी सर, सुशील कुमार को आपने बोला वेटलिफ्टिंग।
तो वो ये थोड़ा सा है, वो हो जाता है, तो इंसिडेंट ऐसा रहता है तो लेकिन इसको चेक करना है बिकॉज Yes, ये sir, चला yes, sir, जाएगा yes, sir. रॉन्ग इंफॉर्मेशन इनपुट में। Yes, sir. यानी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो बट फिर भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। एक जगह मुझे जो आपसे डिसअपॉइंटमेंट हुई रिगार्डिंग नेगेटिव्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप हर चीज बोल रहे थे बट इन्वायरमेंट का क्लाइमेट चेंज से आपने बोला, एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट आप भूल रहे थे। Yes, हाउ sir. कैन यू फॉरगेट दैट? Yes, sir. क्लाइमेट चेंज जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो तो चाहिए ही चाहिए। उसी तरह आप ट्राइब्स का जो बोले व्हाट यू विल लर्न, उसमें आप जेंडर इक्वालिटी छोड़ दिए। ट्राइब्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा जो चीज था वो कुछ जगह पे वही मैंने बोला ना कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिसिंग था, ठीक है, जैसे कि ट्राइब्स के प्रॉब्लम्स में भी जनरलाइज्ड आंसर्स आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आपसे स्पेसिफिक डिमांड किया जाता है कि क्योंकि आपका मैकेनिकल बैकग्राउंड है इसलिए मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर का क्वेश्चन आपसे पूछा था। ये अवेयरनेस में भी आता है, आपका बैकग्राउंड मैकेनिकल है इसलिए मुझे लगा आपको नॉलेज होगा। भूल गया सर कुछ हाँ। अच्छा भूल गया। Yes, sir. ये दैट इज द पॉइंट। रिवीजन नॉलेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना रिवीजन है। Yes, sir. और रिवीजन ही आपको कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, Yes, sir. तो रिवीजन बहुत